एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? फॉरगेट अबाउट डेफिनेशन. इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? सर जो कम्युनिटी में आता है, मतलब कॉन्टेजियस, वेक्टर बोर्न, जरूरी है कि कम्युनिटी में हो. अगर वो आइसोलेटेड केसेस हो देन दे आर नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज इन्फेक्शियस. yes yes yes. Okay. So now we will see what is definition of communicable disease. So it is an illness due to a specific infectious agent. These infectious agents are going to be biological, and it can be because of agent or the toxic products which is being secreted by those infectious agent, which is capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to man. From the environment. Yes, from the environment through water, food, है ना. जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज मोस्टली आपको मलेरिया जो है वो वाटर में स्प्रेड करता है, और इवन वाटर बॉर्न डिजीजेस, Waterborne diseases. food borne Yes. diseases, airborne diseases, droplet infections. So you take the name, and most commonly nowadays we are very. Give me a minute. I'm getting a call. Sorry. So in modern times we are more prone to infectious disease, which is communicable disease. At the same time we are more exposed, or we are going to be a hub or capital of non-communicable diseases, be it hypertension, be it diabetes, be it cardiac disease. So communicable disease spreads due to a infectious agent or the toxic products secreted by them, transmitted from human to human, animal to man, or animal to animal, or from the environment. So it can be droplet infection, it can be waterborne infection, it can be foodborne infection. So it can be any one of them. Now, why we should concentrate on epidemiology of communicable diseases? So as to know the changing pattern, how the patterns of infectious disease are changing. If you see 20 years back, infectious disease were not so common. Now of lately, after HIV, we are seeing multiple infectious disease, new infectious disease being spread in the community at a larger level, be it Ebola, be it COVID. So there are multiple diseases which are very common. So we also need to study to know the new infectious diseases which are happening in the community, and then to know the possibility that some infectious disease or chronic disease can, like some of the diseases which we are thinking is a chronic disease, can have a infectious origin. So we need to, that's why we need to know more about epidemiology of communicable disease. So these are various terms and definitions which we need to know. Multiple or quite a few of them we have learned in previous classes also, but these are very common and frequently talked about, or you will see when you will be studying epidemiology of infectious disease. So what is infection? So infection is entry and development or multiplication of infectious agent in the body of a man or animal. तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपके शरीर में गया, इंटर किया, इन्वेड किया, उसके बाद वो मल्टीप्लाई किया, एंड देन इन्फेक्शन जो है आपके शरीर में दिखेगा. सो इन्फेक्शियन डज नॉट ऑलवेज कॉज इलनेस. सो इट कैन बी. Can anyone tell what is latent infection? Are you aware about latent infection? बॉडी में लेटेंट स्टेज में रहता है विदाउट एनी साइन सिम्टम. Yes, so infection is in your body, but it will not show any sort of symptom, and it is not going to affect your body.
So it is in Yes. latent phase, inactive phase. So that's why it is being written that an infection may not. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, it is showing I am signed out. So there are several types of several levels of infection. Colonization, that is, it will be forming a colony within your body. Subclinical or inapparent, it will be in your body, but it will not be showing any no, clinical infection. Latent infection or clinical infection, where it will show a clinical infection. Now, what is contamination? Contamination is like the presence of that infectious agent, whatever is causing infection, on the body surface, clothes, bedding, toys. So up you think of the things around you. So those infectious agents are spread over there, and it has contaminated your daily uses things. So it is contamination. Now infestation. If the infective agent is lost and develop and it leads to reproduction of arthropods. What are arthropods? These are vertebrate or invertebrates? Sir, orthopod is vertebra. Invertebrate. They are not Invertebrate. vertebrate. Sorry, sorry. Yes. Yes, 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 yes. So it can be lice, leech, mite. Okay. So if it is it invades and it lodges and on the either on the surface of the body. So this is infestation. So most of the time you will see lice on the hairs. So this Yes, is yes. this is an example of infestation. What is contagious disease? Contagious, Contagious disease is nothing but infectious disease, right? yes, That's yes, why yes. it is contagious. Now, host, we have learned about host. It can be a human being or it can be an animal where that infectious. Sir, one Ah, question is here. Sir, yes. contagious only in touch or any airborne is not contagious. Why airborne will not be contagious? Airborne diseases are also contagious, right? It can Sir, see airborne diseases are those which spreads through air, right? So if okay, infection or the droplet, so for that in matter, the infectious agent is in air. Okay, it can be in okay, form of droplet or it can be it can be in form of a spores in the air. If it transmits, I sneeze, so the virus dislodges from my body or the bacteria dislodges from my body and it spreads in the air. So a person who are in the vicinity within the reach of 100 meter or 200 meter till yes, where yes, those yes, yes, droplets will spread, so the person will be getting that disease, right? So yes. airborne diseases are also infectious. So vector of, so the one which carries infection is called vector of infection. Okay. So the Yes. carrier is nothing but a vector. Now reservoir, where those infective agents or bacteria or virus lodges, multiplies within, but they are not going to infect the person at the reservoir. Okay. So there are सर certain रिजर्व में तो मस्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए हाँ, मल्टीप्लाई तो तो वही मैं कह रहा हूँ रिजर्व ना, उसमें रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई करेगा, बट वो यूजुअली उसको हार्म नहीं करेगा। वहां यस से वो निकलेगा एंड इट विल गो एंड इफेक्ट और इन्वेड आवर इम्यूनिटी सिस्टम एंड इट कैन कॉज disease in human being, but there are certain animals where they stay, they lodge themselves, they multiply themselves, but they don't harm them. Okay. नाउ इंसिडेंस प्रिवलेंस हमने पढ़ रखा है, एपिडेमिक पढ़ रखा है, एंडेमिक पढ़ रखा है. नाउ व्हाट इज हाइपर एंडेमिक एंड व्हाट इज हॉलो एंडेमिक? So a disease which is always present at high incidence and prevalence and which is going to affect all age group is called hyperendemic. Okay, this disease will always have a higher incidence, higher prevalence, and will be commonly seen affecting all the age group is hyperendemic. What is holoendemic? Holoendemic are those levels of infection जो कि अर्ली एज ग्रुप के स्पेशली बच्चों को ये अफेक्ट करते हैं एंड लीडिंग टू अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम
such that adult population shows evidence of disease, but they are less than the incidence and prevalence among the children. तो हॉलो एंडेमिक उसको कहते हैं जिसमें जो डिजीज है वो मोस्टली आपको छोटे बच्चों में देखा जाता है। चाइल्ड। हाँ जी सर यहाँ पे हॉलो एंड हाइपर, हाइपर में सर ऑल एज ग्रुप आर अफेक्टेड। हाइपर में ऑल एज ग्रुप अफेक्टेड होगा और हायर इंसिडेंस और हायर प्रिविलेंस रेट होगा। हॉलो एंडेमिक और हाइपर एंडेमिक में डिफरेंस ये है कि हॉलो एंडेमिक में ये बच्चों में ज्यादा अफेक्ट करता है ये बीमारी। चाइल्ड आर मोस्ट अफेक्टेड। हाँ 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 हाँ। सो पैंडेमिक भी हमने पढ़ रखा है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब स्पोरेडिक हाँ स्कैटर्ड। हाँ बहुत इनफ्रीक्वेंट, मतलब they don't show a pattern in terms of time and place a disease. Okay, so they are irregular and haphazard. It is not like when we had been talking about हम जब if you remember last class where we had been talking about outbreak, so we have seen a cluster of cases. Now in sporadic disease there are no clustering, there is no time pattern, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। Okay, so this is sporadic, very few cases here and there, so that is known as sporadic. Attack rate, now what are nosocomial infection? नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको कहते हैं? सर एक्चुअली हॉस्पिटल में जो डिजीज स्प्रेड होता है हॉस्पिटल से ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। So if a person, whether a healthcare provider or whether a patient acquires an infection within hospital premises, that is hospital acquired infection. So hospital acquired infection is also known as nosocomial infection. That's why infection control is of utmost importance for a hospital. आप देखोगे जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनका एक अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट होता है, एक ग्रुप होता है which comprises of a doctor, a nursing staff. So they always look into the measures, what all infection control measures are being taken in the hospital, so that अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है, डॉक्टर आता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज ओवर देयर, दे डोंट कैरी इन्फेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्लियर है सबको? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस किसको कहते हैं? व्हाट आर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस? सर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं ना? यस सर। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो ड्यूरिंग हॉस्पिटल में जब आता है तो ओटी में जाने का टाइम वो जो स्पेशल प्रिकॉशन। हाँ ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट इट इज? मास्क, एप्रोन। क्यों लगाते हैं सर क्योंकि वहाँ पे तो इन्फेक्शन फ्री है, आईसीयू में होता है जब, तो तब हम लोग जब बाहर से अंदर नहीं जा सके क्योंकि उसके पहले सैनिटाइज करके मेरा कुछ इन्फेक्शन मतलब बॉडी से और यार से कुछ। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हैंड वॉशिंग। यस। प्रोटेक्टिव एप्रल, सो दैट लाइक ब्लड स्पिल हो या किसी तरह का, और पेशेंट वी डोंट नो देयर वेदर दे आर इन्फेक्टिव टुवर्ड्स एचआईवी और हेपेटाइटिस बी, तो उस कारण से हमें बचाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सो दिस यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज आल्सो अ बिगर पार्ट ऑफ दैट hospital acquired infection. That's why I discussed that. What are opportunistic infection? सर ये आइडिया नहीं है अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई बंदा HIV पॉजिटिव है, then they are very prone to get other diseases like diarrhea, like TB. Have you heard about? ओके एक्चुअली उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। Very good. So when a person's immunity system is weak because of ABC disease, there are multiple other diseases he is prone to or she is prone to get. So हाँ, तो एक तो डिजीज हो गया आपका, प्राइमरी डिजीज हो गया जिसके कारण आपका इम्यूनिटी लेवल लो हो गया है,
और उस इम्यूनिटी कम होने से देयर आर मल्टीपल अदर डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस विच आर वेरी कॉमन टू इन्वेड इन योर बॉडी. सो दोज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड opportunistic infection. Like जैसे डायरिया मैंने बोला, टीबी बोला, these are examples of opportunistic infection. Now what is eradication and elimination? Both are interchangeably used. What is that? सर इरेडिकेशन एक्चुअली अभी भी कुछ कुछ है. मतलब एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जब ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रोग्राम है, पहले जो नाम था RNTCP था, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम. अभी NTEP हो गया है, इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड टारगेट 2025 एलिमिनेशन. So planning. we want to finish those diseases from our geography, right? Yes. So eradication and elimination both are interchangeably used. अभी जैसे हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया है ना? Yes, yes. पोलियो हमारे यहाँ से खत्म हो गया है. तो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स भी डिप्थेरिया, इरेडिकेट कर दी. हाँ जी सर, स्मॉल पॉक्स भी इरेडिकेट हो गए. हाँ, तो Yes. वी आर प्लानिंग फॉर मीजल्स, है ना, टीबी, ये सब डिजीज हम Yes. खत्म करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ इन्फेक्शन? So potential for an infectious disease to spread or influence, which includes the influential factors, include the probability of transmission. तो जो रेट जो है जिसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, है ना, उसको रिप्रोडक्टिव रेट या विरुलेंस कहते हैं. व्हाट इज विरुलेंस? Sir, density of disease infectious. Virulence जो है वो basically is the capability of a virus to infect other person. Okay. Hello. Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली वो जो किसी दूसरे होस्ट को अफेक्ट करेगा, है ना, उसके पावर को विरुलेंस कहते हैं. Yes. Power. हाँ. Now there are, now what is primary case, what is index case, and what is secondary case? Sir, आप बोलिए. किसी को कोई आइडिया है? सो केस किसको कहते हैं? A person in the population or a study group identified as having a particular disease is called case. सर, ये पर्टिकुलर डिजीज मतलब सर यहाँ पे जब वो कोई भी इसका अंदर साइन सिम्टम, हाँ, जिस बंदे में साइन सिम्टम दिख रहा है क्लिनिकली, हम कह सकते हैं दिस इज अ केस. इफ यू रिमेम्बर, आउटब्रेक में हमने केस का डेफिनेशन भी करना एक स्टेप था. सो प्राइमरी केसेस उन केसेस को कहते हैं जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं ड्यूरिंग द आउटब्रेक. सेकेंडरी केस उस केस को कहते हैं जो कि प्राइमरी केस से वो डिजीज को लिया हो. समझ गए आप? सर अच्छा, ओके. सर सेकेंडरी फिर से बता. प्राइमरी केसेस आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द आउटब्रेक. यस. जैसे पीछे वाला आउटब्रेक याद करो जहां हमने कहा कि वाटर जो आया था किसी टैंक से, दैट वाज कॉन्टामिनेटेड. तो हाँ, तो जिस एरिया में उस पानी को पीने से कॉलरा फैला था, ओके, दैट वाज those were primary cases. Now cholera can spread through the fecal material also, है ना. fecal material से contaminate वो पानी होगा और वो हो सकता है वहां से किसी ड्रेनेज के थ्रू या वाटर सप्लाई होते किसी दूसरे पॉपुलेशन को भी अफेक्ट किया हो. तो प्राइमरी केसेस हो गए जो उस पानी को पी के हुए थे, और सेकेंडरी केसेस कैन बी द पर्सन हु हैज बीन इन्फेक्टेड थ्रू द प्राइमरी केसेस. समझ में आ गया? सर, इन्फेक्टेड थ्रू द प्राइमरी केसेस मतलब सर वो अफेक्टेड पर्सन से. हाँ, जो अफेक्टेड पर्सन था ना, जैसे शायद कोविड को मेंशन कीजिए. कोविड लेके मैं आपको बता रहा हूँ. कोविड तो एक हो गया कि मुझे कोविड हुआ, ठीक है, आई वाज कफिंग, स्नीजिंग, तो मेरे
कफ करने से, स्नीज करने से जो भी लोग केसेस बनते चले गए, ठीक है, दैट वाज Yes. दे आर प्राइमरी केसेस। Okay. ओके, नाउ मैं किसी कमरे में बैठा और किसी सरफेस को मैंने इन्फेक्ट किया, गॉट इट, अगर मेरे ड्रॉपलेट से वो डायरेक्ट इन्फेक्ट हुआ, दैट इज प्राइमरी केसेस। नाउ आई contaminated something and left that place and some person used that and got contaminated using those either a handkerchief or Yes, yes, yes. sitting on the bed sheet, so those are secondary cases. Now latent cases, you know कि केस वो उसमें इन्फेक्शन होगा बट दैट इन्फेक्शन हैज नॉट somehow overcame their immunity, so they are in the latent phase. Clear है? Affected in primary cases. हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी केसेस में वो इन्फेक्ट कर रहा है। यू कैन सी द डिजीज कंडीशन बिकॉज समहाउ दे हैव ओवरकेम देयर इम्यूनिटी। ठीक है, व्यूरुलेंस ज्यादा था या उनका इम्यूनिटी कम था, वहां पे आपको डिजीज कंडीशन देखने लगा। लेकिन लेटेंट केसेस उसको कह रहे हैं जिसमें वायरस इंटर किया लेकिन वो उसके इम्यूनिटी को ओवर पावर नहीं कर पाया, या उसका विरुलेंस कम था, उसका पावर कम था, इसलिए वो केस के फॉर्म में वो नहीं सिम्टम्स शो कर पाया। क्लियर है? सो दोज आर लेटेंट केसेस। नाउ एनिमल रिजर्वायर, जूनोसिस किसको कहते हैं? जूनोसिस इज ए इन्फेक्शन दैट इज ट्रांसमिसेबल अंडर नेचुरल कंडीशन फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू मैन। हाँ, वर्टिब्रेट टू मैन। तो ये बेसिकली एनिमल से ये केसेस आने वाले। एक मिनट, तो ये एनिमल रिजर्वायर वाले केसेस को जूनोसिस कहते हैं। रिजर्वायर कैन बी सॉइल आल्सो, वाटर आल्सो, एनीवे वी विल मूव टू विरुलेंस। हाँ, विरुलेंस का डेफिनेशन देखिए, इज द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। ओके, सो द डिजीज इवोकिंग पावर, मैं कहा था जो पावर होता है उसको कहते हैं। केस फैटेलिटी किसको कहते हैं? जितना उस इन्फेक्शन के कारण लोग अफेक्ट हो, या केस फैटेलिटी इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जितने लोगों को वो मारेगा वो बीमारी, वो केस फैटेलिटी रेट उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं उसका। इंसिडेंस सर, इंसिडेंस जितना बढ़ेगा उसका केस फैटेलिटी जो है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हु डाई ऑफ दैट इन्फेक्शन। ठीक है, केस फैटेलिटी को हम मोर्टेलिटी से कनेक्ट करते हैं। फैटेलिटी मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ। क्लियर है? इंसिडेंस कैन बी in terms of new cases of that disease. So नया केस आया डिजीज का, वो इंसिडेंस हो गया, लेकिन वो नया केस आया और वो मरा उस डिजीज के कारण, सो दैट इज केस फैटेलिटी। क्लियर है? yes. So case fatality is always related to mortality. It is not limited to incidence. Case fatality is always related to mortality. मतलब प्रिवेलेंस भी आएगा। प्रीविलेंस और इंसिडेंस, देखिए प्रीविलेंस और इंसिडेंस में क्या कहीं हम डेथ को फैक्टर इन कर रहे हैं क्या? आरबी नहीं। सो अच्छा, आपने मोर्टेलिटी बोला। हाँ, वो तो मोर्टेलिटी incidences are new cases, prevalence is new cases plus old cases. yes. Okay, now न्यू केसेस हो या ओल्ड केसेस हो, किसी भी एक आइडेंटिफाइड डिजीज के कारण अगर कोई डेथ हो रहा है तो दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स जितने भी हो रहे हैं, तो उसको नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस, तो वो उसको केस फैटेलिटी रेट कहेंगे। क्लियर है? ओके सर। हाँ, नाउ व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड एंड व्हाट इज लेटेंट पीरियड? सर इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एनी इन्फेक्शन एजेंट जो कोई भी एक्सपोजर किसी डिजीज का किसी ह्यूमन बीइंग को हुआ है ना, तो वो एक्सपोजर से लेके उसमें जो फर्स्ट साइन और सिम्टम आया उस डिजीज का, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उस बीच में दैट वायरस इज ओवर देयर बट दे हैव नॉट शोन एनी डिजीज स्टेज,
तो जितना भी टाइम लगे, किसी का हफ्ता दिन होता है, किसी का 15 दिन होता है, किसी का 6 महीना होता है, तो वो उस पीरियड में उसके बॉडी में है लेकिन कोई केस सिम्टम नहीं शो किया। Now, latent period क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड द ऑनसेट ऑफ onset of infectious हाँ agent, इन्फेक्शियसनेस। infectious, तो इट कैन बी इन्फेक्शियसनेस, मतलब आपके बॉडी से वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को ट्रांसफर होने लगेगा। थोड़ा सा अंतर है। इंक्यूबेशन पीरियड में आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट गया और उसके बाद उसने फर्स्ट साइन और सिम्टम दिया, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कह रहे हैं। लेटेंट पीरियड उसको कह रहे हैं आपके बॉडी में कोई वायरस गया और बैक्टीरिया गया, वॉट एवर इट इज, इन्फेक्शियस एजेंट गया और आप किसी दूसरे को इन्फेक्ट करने लगे, सो दैट इज लेटेंट पीरियड। क्लियर है? yes, yes, पहले में एक्सपोजर हुआ और आपने साइंस हो किया, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। incubation period. दूसरे में आप में इन्फेक्शन गया और आप किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट करने लगे, सो दैट इज लेटेंट पीरियड। मेरे को कोई साइन सिम्टम नहीं है, बट मैं दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहा हूँ। हाँ, इट कैन बी एट द सेम टाइम, आपको सिम्टम भी दिखने लगे और आप किसी को इन्फेक्ट भी करने लगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों का टाइम अलग हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है, लॉन्गर भी हो सकता है। लेटेंट पीरियड हो सकता है कि बाय द टाइम योर फर्स्ट साइन केम, है ना, उससे पहले आप 2 लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हो। लेकिन कई कभार ये भी होता है कि आपको साइन सिम्टम पहले आएगा और आप इन्फेक्ट बाद में करते हो। कई कभार ऐसे होता है कि आपको साइन सिम्टम लेट में आता है लेकिन आप इन्फेक्शन पहले फैलाने लगते हो लोगों को। क्लियर है? Yes, yes. ठीक है। नाउ ट्रांसमिशन Sir, प्रोबेबिलिटी। हाँ, disease term in latent periods is more dangerous. latent period is more dangerous because you don't know if your sign or Yes. symptoms are not over there, तो आपको लगेगा आप बीमारी नहीं हो, but at the same time you have started infecting others also. Other also, yes. Okay. Now, what is transmission probability ratio? This is not much used, but still आप जान लो. It is a measure of risk of transmission from infected to susceptible individual. Susceptible. Susceptible किसको कहेंगे? जिसका इम्यूनिटी कम हो, है ना, Yes, और yes. जो ऑलरेडी वीक इम्यूनिटी वाला हो, बीमार पहले से हो, तो वो ससेप्टेबल हो, वो बीमार हो सकता है। सो टीपीआर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये 4 तरीके के, ये जो टीपीआर प्रोबेबिलिटी होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। वो है P00, P01, P10, P11। तो P00 क्या है? ये अनवैक्सीनेटेड पर्सन से अनवैक्सीनेटेड ससेप्टेबल होस्ट में जाता है। P01 जो है वो वैक्सीनेटेड है लेकिन इन्फेक्टिव है। वो वैक्सीनेटेड हो गया है लेकिन उसको इन्फेक्शन हो गया है और वो अनवैक्सीनेटेड पर्सन के लिए वो सस्पेक्टेबल है। P10 जो है वो अनवैक्सीनेटेड इन्फेक्टिव है और वो वैक्सीनेटेड पर्सन है, उसको वो Susceptible. हाँ, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। और P11 जो है वो जो है वैक्सीनेटेड है बट इन्फेक्टिव है, वहां से वो वैक्सीनेटेड बट ससेप्टेबल होस्ट में जा सकता है। ये इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज नॉट सो मच यूज, तो ये आपके काम का नहीं है। ये आज का जो सेशन था आपका एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें इतना ही था। इसमें मैंने कहा ये जो आप इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आने हैं। बहुत ज्यादा आएगा तो रिजर्वायर किसको कहते हैं, होस्ट किसको कहते हैं, ये पीछे भी था, वो पूछा जाएगा। अदरवाइज you should be thorough with all these definitions which are over here। इस सबका definition इसमें डाला हुआ है। This will help you understanding epidemiology in a better way। तो ये अगर आप कभी भी आगे कोई डिजीज पढ़ते हैं, जैसे मेरे ख्याल से आपको अगले सेमेस्टर में वेक्टर बॉर्न डिजीज और सारे डिजीज जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। इन दैट दीज थिंग्स विल बी ऑफ क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। तो ये आपको मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। क्लियर है?
यस सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर। आप पूछिए ना। जब आप जो प्रीवियस डे में जब बताया एनी प्लान प्रोग्राम इन एपिडेमियोलॉजिस्ट एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट और एनी सर्विलेंस ऑफिसर और एनी प्रोग्राम ऑफिसर, सर एक्चुअली वो जो स्लाइड पहले दिन शेयर किया था, तो उसी के हिसाब से वो जो प्लान था, तो उसी के हिसाब से कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बोथ ऑफ आएगा ना, बोथ ऑफ डिजीज। हाँ, जब भी आउटब्रेक जब होता है ना, ठीक है, यस यस फॉर योर इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और तक क्लियर करना पड़ेगा। वेन एवर देर इज आउटब्रेक, यस आउटब्रेक इज यूजुअली एन इन्फेक्शियस डिजीज। कभी सुना है कि हार्ट डिजीज का आउटब्रेक हुआ है या यस यस डायबिटीज का मैक्सिमम आउटब्रेक हुआ है? एनसीडी कम्युनिकेबल So, डिजीज so होता है। whenever there is an outbreak will be in terms of non-communicable disease. यस Okay, because we are more worried because when there is an outbreak, it will infect people in multiple propagation. ठीक है, यस वो एक से जितने भी लोग होंगे कम्युनिटी में वो सारे एक्सपोज होंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्यूनिटी स्टेज दे विल गेट इन्फेक्टेड। जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जैसे बच्चों की या बूढ़ों की, वो जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, दे विल बी मोर प्रोन टू गेट दैट डिजीज। जो एडल्ट्स होंगे उनको थोड़ा लेट आएगा, है ना, इस तरीके से। बट इन्फेक्शन मल्टीपल प्रोपोगेशन में फैलेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, ऐसे करके वो फैलेगा। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट इन्फेक्शियस, वो फैलता नहीं है, दैट इज मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिजीज। यस ठीक है, व्हेन यस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीज, देन दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर। उसमें कोई इन्फेक्टिव एजेंट नहीं होता है, कोई होस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो यस दे डोंट नीड अ वेक्टर आल्सो। सो ये जो हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देख रहे हैं होस्ट का, मतलब एपिडेमियोलॉजी ट्रायड में डिपेंड नहीं करता। हाँ, वो कम्युनिकेबल डिजीज आएगा वहां पे। होस्ट इन्वायरमेंट, हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 चीज दिख रहा है ना हमें, यस यस तो ये होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसमें होस्ट और एजेंट नहीं दिखेगा, आपको इन्वायरमेंट दिखेगा, यस बिकॉज यस your environment and the way you your lifestyle in that environment will be the one which will be affecting and leading to that disease। ठीक है, वहां पे आप क्या खाते हो, क्या काम करते हो, है ना, आपका रूटीन क्या है, दोज थिंग्स विल मैटर अलॉट। जबकि लाइफस्टाइल। हाँ जी, मतलब सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैक्सिमम टाइम डिपेंड अपॉन लाइफस्टाइल yes, डेली हैबिट। yes, it is more of a lifestyle disease। Okay, because you are not taking care of your lifestyle, or you have a very inactive lifestyle. If you remember, uh, uh, people 20 years back, you would have seen people playing in the ground, playing kabaddi, playing cricket, playing football, whatsoever. We were more exposed towards outdoor games. Now यस यस present generation, we don't have that much of outdoor games happening. People are either confined to their laptop, people are either confined to their mobile. मोबाइल। Okay, so यस यस that way even our community has grown. We previously we used to have bigger family size. Okay, now we have nuclear family, joint family का culture भी खत्म होता जा रहा है। So यस we यस have nuclear family now, there is no one within the home, तो घर में ही लोग confined हैं। Previously there was a larger home, big veranda where people used to gather, घर के बाहर घर के लोग, घर में भी cousins होते थे। अब वो कल्चर खत्म हो जा रहा है। So it is more of a lifestyle modernization, urbanization का ये प्रॉब्लम है। So is this clear? यस सर। Any questions Yes, sir. which we need to discuss? सर अभी टाइम है ना, एक क्वेश्चन करूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। सर अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता जब ये कम्युनिकेबल और इनकम नॉन कम्युनिकेबल में कोई कनेक्शन है? क्योंकि जब ये कोविड टाइम को मैंने देखा और आपने भी देखा, बहुत सारे लोग भी देखा, ड्यूरिंग कोविड टाइम जो लोग ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सफर कर रहे हैं, जैसे कैंसर बीमारी था
और हार्ट का बीमारी है, तो एनसीडी में कम्युनिकेबल में ज्यादा इफेक्टेड हुआ ना, माने उन लोगों को ज्यादा तो you need to understand the epidemiology, क्यों हुआ, क्यों Yes, ऐसे लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए कोविड में, वेदर दे लॉस्ट देयर लाइफ और दे सफर्ड फ्रॉम कोविड मोर, दोज हु वर हैविंग एनसीडी, व्हाई? क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी देयर वाज अ डिजीज कंडीशन, राइट? yes, किसी का किडनी प्रॉब्लम था, किसी का लीवर प्रॉब्लम था, कोई डायलिसिस पे था, कोई कैंसर पे था, किसी को डायबिटीज था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को हार्ट प्रॉब्लम था, उनको कोरोना ज्यादा अफेक्ट किया या ज्यादा इफेक्ट किया, yes, ज्यादा अफेक्ट किया, और मोस्ट ऑफ देम दे लॉस्ट देयर लाइफ आल्सो, व्हाई? yes, yes, बिकॉज देयर वाज अ डिजीज कंडीशन इन देयर बॉडी, because of which their immunity was low. yes, Okay, the body defense mechanism to fight a disease or an infectious agent was either nil or अरे बहुत बहुत कम होगा जो उसके डिफेंस मैकेनिज्म को बचा के रखा होगा और कोविड से लड़ा भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में एक बीमारी है, तो योर होल सोल नो इम्यूनिटी विल बी टुवर्ड्स फाइटिंग दैट डिजीज. So in yes, that case, that person became more susceptible to get COVID. ठीक है? yes, अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो, आपका लाइफ में कोई बीमारी नहीं है, तो यू आर हैव योर होल योर बॉडी innate immunity. ठीक है? Innate is yes, yes, the yes, immunity which your body is having. So your yes, innate immunity will be fighting towards one disease. अगर एक बीमारी है तो, अगर आपको दो बीमारी हो गई, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल, तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी विल बी डिवाइडेड, किसको बचाना है किसको नहीं बचाना है, और बचाना है दोनों को बचाना है, तो लाइक इफ one person is fighting with one person, then the whole power of that person will be against fighting that one individual, right? अब दो yes, लोगों से लड़ाई करोगे तो आपका पावर भी तो दो लोगों में खर्च होगा, एंड देन बोथ विल डिफीट यू. अगर इफ yes, नॉट बोथ, तो एक तो डिफीट करेगा. तो कम्युनिकेबल जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, दीज आर मोस्टली क्रॉनिक डिजीज, लंबा चलते हैं. ठीक है? yes, इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट क्रॉनिक, वो आएंगे और हो short सकता है term, वो वन शॉट में वो आपको खत्म कर दे. yes, व्हाट इट? yes. सर इसमें एक्चुअली एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट प्लान क्या होगा, मतलब इन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी नॉन if कम्युनिकेबल you डिजीज में, remember my last slide, हमने हेल्थ एजुकेशन की बात की थी, स्क्रीनिंग की ओके, बात की थी. ठीक है? अर्ली तो स्क्रीनिंग, अर्ली अर्ली स्क्रीनिंग, हाँ, तो पहले में हम कम्युनिटी को अवेयर करें कि आपका हाँ, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए. ठीक है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. लाइक इफ वी आर टारगेटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वी शुड अवेयर कम्युनिटी टू ईट लेस ऑफ शुगर, लेस ऑफ सॉल्ट. ओके? राइस कम खाओ, मैदा कम खाओ, हमें जंक फूड कम खाओ, हमें ये बताना चाहिए. आप सोडा ड्रिंक्स कम, सोडा ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पिए. आपको जो पैकेज जूस हैं वो नहीं पिए, बिकॉज दे हैव मोर ऑफ शुगर. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाएं. तो हमें कम्युनिटी को ये अवेयर करना चाहिए. अगर नहीं करेंगे, देन दे विल बी गेटिंग हैबिचुएटेड ऑफ दीज फूड आइटम. हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होगा. आजकल हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं बिकॉज वी नीड टू सी कि हम कितने फुट स्टेप चले. मैं 8,000 फुट स्टेप चला, मैं 10,000 फुट स्टेप चला. पुराने, इफ यू रिमेम्बर आवर पेरेंट्स, वेदर दे वेयर अकस्टम टू दोज थिंग्स, उनके यस, लाइफस्टाइल में इतना प्रॉब्लम नहीं था. नाउ यू कैन सी ऑन रोड मल्टीपल, वन फैमिली हैविंग टू कार. देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वेयर नो मोर डिपेंडेंट ऑन बाइसिकल. बाइसिकल यस, भी एक जमाने में नहीं था. तो ये दीज आर ऑल मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिजीज. अगेन अगेन आई एम टेलिंग, ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस है. आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, एट द सेम टाइम यू आर मोर एक्सपोज टू पॉल्यूशन. पहले एयर कंडीशंस कम होते थे, आजकल तो एक एक बिल्डिंग में चार चार एयर कंडीशन लगाया है. सो दोज एयर कंडीशंस ऑल्सो पॉल्यूट योर इन्वायरमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं. एरोप्लेन यस, ज्यादा अब फ्लाईओवर करने लगे हैं, उससे भी जो इजेक्ट होता है स्मोक, दैट इज अगेन हेजार्डस फॉर अस. ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है. तो ये कहीं ना कहीं ये मल्टीपल प्रॉब्लम है. तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा कम्युनिटी को.
आपने कम्युनिटी को एजुकेट किया। दूसरा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनसीडी का स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है। आशा को पैसा दिया जाता है, वो कम्युनिटी में एक 30 से प्लस एज ग्रुप वाले को उसको स्क्रीन करना होता है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस गवर्नमेंट चला रही है, बिकॉज दे हैव समहाउ अंडरस्टूड कि भाई एनसीडी विल बी कमिंग इन अ बिग वे। समहाउ दैट प्रोग्राम इज नॉट रोल्ड आउट द वे इट इज सपोज टू। तो एनसीडी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कौन कौन हमारे लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं। उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंगली जो आपके क्लिनिक पे लोग आ रहे हैं उनको इलाज कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं। तो उससे पहले वाले 2 स्टेप पे आप अवेयरनेस फैला रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, और दूसरा अर्ली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। So these can be the ways how you will look into. Clear है? ओके सर, मतलब सर प्राइमरी प्रिवेंशन को आप ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Primary, see, public health is all about primary prevention. यस 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 जब वो हॉस्पिटल पहुंच गया, then that is not primary prevention, that is curative prevention. सेकेंडरी हो गया। नहीं, वो curative aspect है, and curative aspect, for that curative aspect there is a MBBS doctor or homeopathy doctor or Ayurvedic doctor is sitting over there. That is not public health. Okay, so public health aims to finish those clinical conditions before reaching hospital. हमें clinical condition पे पहुंचना ही नहीं देना है। यस। Tanveer, any questions? These people are always mute. Tanveer, Nancy, can you unmute and say something so that I should be aware that you are over here? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं रहते या यू आर शाई टू आस्क एनी क्वेश्चंस? कोई रिस्पॉन्स नहीं। No, sir, not at. Okay, so I assume that you don't have any questions now. सर पहले जो स्लाइड वो तो शेयर नहीं किया सर। कर देंगे सर, कर देंगे, सीमा को कर देंगे। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ टिल नेक्स्ट वीक। Okay, I will be the slides are over there. I will try to share it this week to with Seema. Okay, or I will put it in the group also. Okay, thank you. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।